سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے سفر میں کسی قسم کا عدم استحکام برداشت نہیں کیا جائے گا، یہ کہا گیا آرمی چیف کی جانب سے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی ترقی کے سفر میں رخنہ ڈالنے اور توجہ ہٹانے والوں کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا گرین پاکستان انیشیٹو کانفرنس سے خطاب، اور اس خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم سب مل کر ٹیم پاکستان ہیں۔ مل کر ٹیم پاکستان ہے، ترقی کے سفر میں رخنہ ڈالنے اور توجہ ہٹانے والے ناکام رہیں گے، سپہ سالار کا عزم۔ پاکستان گرین انیشیٹو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ آج کے دور میں معاشی استحکام کے بغیر مکمل خود مختاری کا تصور ممکن نہیں۔ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے سفر میں کسی قسم کا عدم استحکام برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آئیے ہم سب مل کر منفی قوتوں کو رد کریں اور پاکستان کی ترقی اور استحکام کے سفر پر مرکوز رہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ 2019 میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا معاہدہ کیا گیا، اس میں پہلے سگریٹ اور بعد میں کھاد، چینی، دیگر سیکٹر شامل کیے گئے۔ یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم مکمل فراڈ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ 4.5 سال میں قوم کے اربوں خربوں روپے لوٹ گئے۔ اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کا معاہدہ نہیں دیکھا، معلوم نہیں کہاں صاف چلی اور کہاں صاف گزری۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ جو رپورٹ آئی تھی ٹریک اینڈ ٹریس کی، جو 2019 میں اس کا معاہدہ کیا گیا، پہلے فیز میں صرف ٹوبیکو یعنی جو سگریٹ جو ہیں اس کی جو مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں اس کی ٹریک اینڈ ٹریس کا معاہدہ تھا۔ پھر اس میں جو اضافی جو سیکٹرز آئے ان میں کھاد، چینی۔ آپ یقین کریں کہ یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ایک مکمل فراڈ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یہ ہیں بدترین قسم کی مجرمانہ غفلت من حیث القوم جو ہم سے ہوئی ہیں۔ میں نے جب اس کا فیصلہ کیا، بڑی مشکل سے ہم نے اس کی ایک مشاورت کے ساتھ طے کیا، ایک لا عمل، اور جو اس میں ذمہ داران ہیں 2019 سے لے کے آج تک اس کی باقاعدہ اکاؤنٹیبلٹی اور رسپانسبلٹی فکس کی جائے گی، اس کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ اور یہ 2019 میں ہوا ایک اس ایسی حکومت کے زمانے میں جن سے پورے پاکستان میں سب کو ایک لیبل لگا دیا تھا اور خود اپنے آپ کو وہ دودھ کے نہائے اور دھلے تھے۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف سے پارٹی کی قیادت دوبارہ سنبھالنے کی درخواست کر دی ہے۔ پارٹی بیانیہ وہی رہے گا جس کی منظوری نواز شریف دیں گے۔ ان کو سازش کے تحت نااہل کر کے نون لیگ کی صدارت سے الگ کیا گیا تھا۔ پارٹی نے شہباز شریف اور مریم نواز کی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران مزید کہا کہ میرے دائیں اور بائیں میرے بھائی بیٹھے ہیں۔ مسلم لیگ نون میں کوئی گروپ نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون میں رائے کے اظہار میں کوئی قدغن نہیں۔ آج کے اجلاس میں متفقہ طور پہ یہ قرارداد پیش اور منظور کی گئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں، انہیں ایک سازش کے تحت پاکستان مسلم لیگ نون کی صدارت سے علیحدہ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عدالت سے ہی میاں نواز شریف کو سرخرو کیا ہے۔ ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون کی صدارت کا منصب جو ہے وہ سنبھالیں۔ آج میرے دائیں اور بائیں جو میرے بھائی بیٹھے ہیں، اس حوالے سے بھی میں یہ بات کرتا چلوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک جمہوری، ایک سیاسی جماعت ہے۔ ہم رائے کا اظہار کرنے میں نہ تو کبھی کسی قدغن کا شکار ہوئے ہیں اور نہ ہی کبھی اس کے اوپر قدغن رہی ہے، لیکن جو آج ہم نے اکٹھے بیٹھ کے بات کی ہے یا اکٹھے بیٹھے ہیں، اسی کا نام جماعت ہے۔ بانی پی ٹی آئی ہے، اس کی جو ہٹ دھرمی ہے، اس کا جو نان پولیٹیکل رویہ ہے، یہ پچھلے 14 سال سے جب سے دھرنے اس نے شروع کیے ہیں، 14 سے 24 آ گیا ہے، تو اسی کی وجہ سے جو ہے وہ ملک کا سیاسی نظام اور ملک جو ہے وہ نقصان اٹھا رہا ہے۔
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात की गई है। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज कर रही है, जिसे रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप इस एहतजाज के दौरान? आज बिल्कुल जमीन तखाब में जो मुबैना धांधली है उसके हवाले से पीटीआई ने आज एहतजाज की कॉल दी थी और बाद नमाज जुमा जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ जो सूबाई हल्के हैं उसकी सतह पर एहतजाज की कॉल दी थी। इस तरह मुख्तलिफ सतह पर जो है वो एहतजाज किया गया। रुकन सूबाई असम्बली शेख इम्तियाज, रुकन सूबाई असम्बली परख जवेद मूल और दीगर जो अरकान असम्बली और पार्टी के टिकट होल्डर्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया है। इस एहतजाज के पेश नज़र जो है वो भारी पुलिस की नफरी भी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात की गई ताकि कोई अमन व अमान की लियाकत अंसारी, आप हमें डिटेल्स बता रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर शहर और गिरदो नवाह में तेज आंधी, मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, तूफानी बारिश और यालाबारी से जल थल एक हो गया। ठोकर न्याज पेग, निश्तर टाउन, जौहर टाउन, गुलबर्ग और फैसल टाउन के इलाकों में बारिश हुई। मौसम खराब होने के बायस PIA की रियाद से आने वाली परवाज का रुख इस्लामाबाद की जानिब मोड़ दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस में सीनियर और जूनियर अफसरान का टकराव, वज़ीर दाखिला का दुनिया न्यूज़ की खबर पर नोटिस। नासिर अली रिजवी की बतौर IG इस्लामाबाद तैनाती पर सीनियर जूनियर अफसरान के टकराव का मामला वज़ारत दाखिला तक पहुँच गया। वज़ारत दाखिला की दोनों सीनियर अफसरान मोहम्मद अवैस और हसन रजा को अच्छी पोस्टिंग देने की पेशकश। अली नासिर रिजवी की तैनाती के बाद इस्लामाबाद के दो सीनियर अफसरान ने रुखसत की दरख्वास्त दे रखी थी। अली नासिर रिजवी का बतौर IG चार्ज लेने के बाद अफसरान ने दफातर में काम करना भी छोड़ दिया। दोनों ऑफिसर्स को अच्छी जगह तैनात किया जाए, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया है। और वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में पुलिस अफसरान और जवानों की नफरी पूरी करने का टास्क भी IG को सौंप दिया। आदिल तनोली इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताइए मोहसिन नकवी की जानिब से मजीद क्या कुछ कहा गया? हाँ जी, देखें, अली नासिर रिजवी की बतौर IG इस्लामाबाद तैनाती के बाद जो है वो सीनियर जूनियर अफसरान का टकराव इस्लामाबाद पुलिस में जो है वो शुरू हुआ है, जिसके बाद मामला जो है वो दुनिया न्यूज़ के हाईलाइट करने के बाद जो है वजारत दाखिला तक पहुंच गया है, जिसके ऊपर वज़ीर दाखिला की जानिब से नोटिस दिया गया है और दोनों अफसरान DIG मोहम्मद अवैस और हसन रजा को जो है अच्छी पोस्टिंग देने की पेशकश कर दी है। अली नासिर रिजवी को इस्लामाबाद जब तैनात किया गया था तो उस वक्त उनकी तैनाती से कबल ही दोनों अफसरान की जानिब से छुट्टी की दरख्वास्त दी गई है। 20 रोज से ज़ायद गुजरने के बावजूद दोनों अफसरान की छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई। ताहम तैनाती के बाद जो है वो दोनों अफसरान की जानिब से दफातर में काम करना भी छोड़ दिया। दफातर छोड़कर दोनों अफसरान चले गए थे। वज़ीर दाखिला के मामले में नोटिस जो है वाकया दुनिया न्यूज़ के वसात से आया है, जिसके बाद वज़ीर दाखिला की जानिब से नोटिस लेकर दोनों अफसरान को जो है वो अच्छी पोस्टिंग देने की पेशकश जी ठीक है, अच्छी पोस्टिंग देने की पेशकश की गई है। आदिल तनोली हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पुलिस के बाद अब एलीट फोर्स की वर्दी पहनेंगी। ज़राए के मुताबिक एलीट फोर्स ने वज़ीर आला मरियम नवाज के लिए स्याह रंग की वर्दी भी सिलवा ली। मरियम नवाज एलीट यूनिफॉर्म रवा हफ्ते होने वाली पासिंग आउट परेड तकरीब में पहनेंगी। बेदिया रोड पर एलीट ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड के लिए तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से। जी हसन, क्या मालूमात हैं इस हवाले से? देखिए, तनकीद तो एक तरफ, लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पुलिस के बाद अब एलीट फोर्स की भी वर्दी पहनने का फैसला किया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए पंजाब पुलिस के एलीट फोर्स ने स्याह रंग की वर्दी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के लिए सिलवा ली है और मरियम नवाज एलीट यूनिफॉर्म रवा हफ्ते को होने वाली एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड तकरीब में ये वर्दी पहनकर जो है उसमें शिरकत करेंगी। और महकमा पुलिस ने बेदिया रोड पर एलीट ट्रेनिंग सेंटर में एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और महकमा पुलिस की जानिब से एलीट फोर्स पासिंग आउट परेड के लिए 28 तारीख का फैसला तो नहीं किया जा सका। अलबत्ता IG तो मरियम नवाज एक बार फिर यूनिफॉर्म पहनेंगी और ये यूनिफॉर्म इस वक्त एलीट फोर्स का होगा। इस पर हसन रजा आप हमें मालूमात फ्राहम कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। 18 से ज़ायद अफसरान को ग्रेड 21 से 22 में तरक्की देने की तैयारियां कर ली गई हैं और वज़ीर आज़म का आला इख्तियाराती सिलेक्शन बोर्ड का इजलास जल्द बुलाने का फैसला सामने आया है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को बोर्ड इजलास के लिए तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक IG सिंध गुलाम नबी मेमन को ग्रेड 22 में तरक्की देने पर गौर किया जाएगा। सेक्रेटरी 2 वज़ीर आज़म असदुर रहमान गिलानी का केस ग्रेड 22 में तरक्की के लिए पेश होगा। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद महमूद को ग्रेड 22 में तरक्की मिलने का इम्कान।
सेक्रेटरी तालीम और तरबियत मोहिउद्दीन अहमद वानी को ग्रेड 22 में तरक्की दिए जाने का इम्कान है। इसी पर बात करने के लिए यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइए ज़राए का क्या कहना है? जी, 1.5 दर्जन से जायद अफसरान जो हैं उनको ग्रेड 21 से 22 में तरक्की देने की तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं और वजीर आजम ने आला इख्तियाराती सिलेक्शन बोर्ड जो है उसका इजलास जल्द बुलाने का फैसला जो है वो किया है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को इस हवाले से तैयारियां मुकम्मल करने की हदायत जो है वो भी जारी की गई है। ग्रेड 21 से 22 के लिए 18 से जायद असामियों पर तरक्कियों का जो जायजा है वो लिया जाएगा। इसमें अगर बात की जाए IG सिंध गुलाम नबी मेमन तो उनको भी ग्रेड 22 में तरक्की देने पर गौर किया जाएगा। इसी तरह से सेक्रेटरी टू वजीर आजम असदुर रहमान गिलानी जो है उनको भी ग्रेड 22 में तरक्की के लिए जो है उनका केस जो है वो पेश किया जाएगा। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद महमूद को ग्रेड 22 में तरक्की मिलने का इम्कान है। इसी तरह से सेक्रेटरी तालीम और तरबियत मोहिउद्दीन अहमद वानी जो है उनको भी ग्रेड 22 में। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस्लामाबाद से अपडेट किया।